Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shafiq Ahmed from the English department of King's College, Firozpur Road campus. Today, I am going to cover uh, our syllabus, which is from the novel Goodbye, Mr. Chips. I'm going to cover chapter number 14. We have already learned about chapter number 13. So, before starting chapter number 14, we should have some concept about background of chapter number 13. In chapter number 13, we learned that Chet requested Mr. Chips to rejoin Brookfield in July 1916, and Mr. Chips rejoined Brookfield. Now, Mr. Chips is still living at Mrs. Wickett's. So when Mr. Chips rejoined Brookfield, what were his feelings? So first of all, let we discuss the concept of chapter. Students, I have divided chapter into this lecture into three parts. In the first part, the concept and analysis of chapter is covered. After that, we will discuss questions and then we will discuss synonyms. In the first part, we discuss the concept. So when Chips was living at Mrs. Wickett's, what were his feeling after rejoining Brookfield? Mr. Chips felt very fit and happy. When he rejoined, his feelings were sublime, huge, haughty, supreme. He had supreme feeling after rejoining. Moreover, he considered himself like a musical hall. Uh, he considered himself very necessary for the school. Actual work was not taxing here. The word taxing is tiring, exhausting, fatiguing. Because actual work was not fatiguing, that's why Mr. Chips felt very fit. Mr. Chips was absurdly gratified by the success he achieved by rejoining the Brookfield School. Generally, here extensively, excessively, he was very contented, mean to say that. So these were feeling of Mr. Chips after rejoining of Brookfield. When Mr. Chips rejoined Brookfield, what were his duties as a teacher? As a teacher, when Mr. Chips rejoined Brookfield, uh, on daily basis, he put on his coat and muffler at about 10:30, and then he went across the road to Brookfield School. He taught the few forms in Latin and Roman history. He These were the old subjects that Mr. Chips taught before. He taught the same old lesson with old method and old pronunciation. His method, his lessons, and his pronunciation was old. Mr. Chips also made some jokes which were of some old and new jokes. For example, Mr. Chips made a joke related to Lex Cornelia, which we have already studied in chapter number 7. Lex Cornelia, what was Lex Cornelia? Basically, हम लोगों ने ये पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। Lex Cornelia क्या था? After that कुछ नए जॉक थे, जैसा कि मिस्टर चिप्स ने नए जॉक थे अबाउट ओटीसी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉप। ये वो ट्रेनिंग और आर्मी का कॉप था जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स को या टीचर्स को वहां पर ट्रेनिंग देता था स्कूल के बाहर। आमतौर पर ये अपीयर्ड हुआ था। तो उसके बारे में, इसके अलावा फूड राशनिंग सिस्टम के बारे में कुछ इसके नए मजाक थे। एंटी एयर रेड ब्लाइंड, ये पर्दे होते हैं जो दीवारों पर लगाए गए थे, उनके बारे में मिस्टर चिप्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए कुछ जॉक थे। इसके अलावा रिसॉल, रिसॉल के बारे में, ये वो जॉक थे मिस्टर चिप्स जो नए जॉक करता था। याद रखिएगा ये जो पुराने जॉक थे, ये क्योंकि स्टूडेंट चेंज हो चुके थे नए, उनके लिए ये न्यू ही थे। लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि मिस्टर चिप्स ये पहले आमतौर पर मजाक कर चुका है दूसरे स्टूडेंट को। तो वो बड़े हैरान होते थे कि मिस्टर चिप्स जो है कितना हर एक शख्स को जानता, हर स्टूडेंट को नाम से, फेस से। उन्हें बच्चों को क्या पता था कि मिस्टर चिप्स किस तरह कनेक्टेड था ब्रुकफील्ड के बच्चों के साथ वाइल लिविंग एट मिसेस विकेट्स हाउस।
आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक बात की, रिसॉल्व। रिसॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया गया। रिसॉल्व क्या था? रिसॉल्व बेसिकली ये मंडे वाले दिन जो स्कूल का मैथ्स होता था, उसमें आप लोग ये कह लें कि ये एक मील की टाइप थी। वॉज जस्ट काइंड ऑफ फ्राइड केक मेड ऑफ मिन्स मीट, जो कीमे वाले, आमतौर पर नान कीमे वाला आप लोग कह लें कि मीट से बनता था। इसके साथ ब्रेड क्रम्ब को मिक्स कर दी जाती थी और इसको मंडे वाले दिन आमतौर पर सर्व किया जाता था स्कूल के मेस में, और सारे बच्चे इसको आमतौर पर, कोई बच्चा इसे पसंद नहीं करता था। तो इन्हीं बेसिस पर मिस्टर चिप्स ने को आमतौर पर एक टाइटल दिया था, आप लोग कह लें एक टर्म दी थी, एबोरेंडम। एबोरेंडम है क्या? एबोरेंडम बेसिकली इसका मतलब होता है ऐसा मीट जिससे नफरत की जाए, एबोरेंडम। तो मीट टू बी एबोर्ड। और ये बाद में मिस्टर चिप्स के लेटेस्ट के तौर पर बच्चों के दरमियान में स्प्रेड हो गया था कि मिस्टर चिप्स का एक लेटेस्ट नया मजाक आया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिस्टर चिप्स का एक कॉन्सेप्ट लेटेस्ट क्या था, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मिस्टर चिप्स का लेटेस्ट बेसिकली क्या है। मिस्टर चिप्स का हर एक, बेसिकली मिस्टर चिप्स वाज अ जॉली फेलो एंड ही यूज्ड टू मेक हिज क्लासेस इंटरेस्टिंग by making different type of jokes. That's why every new and fresh joke of Mr. Chips was known as Chips latest. It is very important question in the context of board papers. तो Chips का तो Chips every fresh and a new joke. Chips was basically a jolly fellow and he used to entertain his classes by making different type of joke. After that, once Mr. Chips got severely ill in 1917, तो मिस्टर चिप्स के पास चेटिस, आमतौर चेटिस जो है काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, और चेटिस उसके बाद हम लोग कैसे 1917 के विंटर में चेटिस की तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई, क्योंकि वो ही वॉज बेसिकली डायबिटिक पेशेंट। आफ्टर दैट ये उसके फिर अप्रैल में 1917 के में इसकी डेथ हो जाती है चेटिस की। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ चेटिस डेथ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चिप्स एज एन एक्टिंग हेड सेकंड टाइम। तो मिस्टर चिप्स को सेकंड टाइम एक्टिंग हेड कैसे बनाया गया था? चेटिस बीमार हो गया था 1917 में, उसके बाद जो अप्रैल 1917 में उसकी डेथ होगी, और मिस्टर चिप्स को उसके बाद सेकंड टाइम एक्टिंग हेड बना दिया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर चिप्स को परमानेंट हेड क्यों नहीं बनाया गया था? अगरचे इसको जॉन रिवर ने ऑफर भी की थी कि, लेकिन बट ही डिक्लाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम दी। तो चिप्स वाज बेसिकली ऑफर्ड टू बी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट हेड, लेकिन he declined to be appointed a permanent head or official head of Brookfield. रीजन ये थी, he felt himself unequal to it. वो असल में ऐसा समझता नहीं था कि भी वो अब इतना एलिजिबल, अनइक्वल टू एलिजिबल टू इट। इसके अलावा वो कहता था कि अपने आप को, ही इज जस्ट वॉर टाइम फ्लूक, जो एक वॉर के टाइम पर जो ऐसा फ्लूक, एक ऐसा लकी सोल्जर है जिसको लकीली और जो हम लोग कह सकते हैं बाय चांस सक्सेस मिल जाए। इसके अलावा ही कुड नॉट फुलफिल हिज, और समझता था कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वो आमतौर पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए मिस्टर चिप्स ने अपने आप को एक ऑफिशियल या परमानेंट हेड बनने से इनकार कर दिया था। आफ्टर दैट जब चिप्स ने ज्वाइन किया तो हेड के तौर पर, रिमेंबर दैट लास्ट टाइम वी clear a question here related to chief's duties, related to chief's duties as a teacher. Here we are going to cover a question related to chief's duties as an acting head second time. जब second time वो acting head बना तो उसकी duties क्या थी? यहाँ पर मिस्टर चिप्स डेली बेसिस पर क्या करता? हेडमास्टर की स्टडी रूम में बैठता और लोगों की, ही सेट इन हेडमास्टर्स स्टडी रूम, हैंडल्स प्रॉब्लम्स एंड डेल्ट विद प्लेन्स, प्रॉब्लम्स मसाइल जो उनको हैंडल करता, और जो शिकायत कंप्लेंट होती उनको हैंडल करता। इसके अलावा ही हैड आल्सो केप्ट अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, उस जो कि एक मेन चीज, उसने सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को भी मेंटेन किया हुआ था स्कूल में। इसके अलावा इसकी एक और ड्यूटी हम लोगों ने कल चैप्टर लास्ट चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर नंबर 13 में, कि चैट्रिस एवरी संडे नाइट को एक ट्रेजिक लिस्ट पढ़ा करता था उन लोगों की जो कि आमतौर पर वॉर टाइम में जिनकी डेथ हुई थी। तो अब क्योंकि ये एक्टिंग हेड था, तो अब ये सेम लिस्ट
ये यानी कि ट्रेजिक लिस्ट मिस्टर चिप्स पढ़ा करता था। और उसके बाद एक दफा ऐसा हुआ कि स्विट्जरलैंड से एक न्यूज आई जो कि हर स्टीफल के बारे में। हर स्टीफल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ये एक जर्मन स्कूल टीचर था। बाद में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोड़कर चला गया था। इसके बारे में न्यूज आई कि वो मारा गया कैमराय की जगह पर। जब इसके बारे में न्यूज आई थी तो मिस्टर चिप्स ने इसके नाम को भी वहां पर दूसरे लोगों के साथ रीड आउट कर दिया था। इस बात पर काफी ऑब्जेक्शन रेज हुए कि भाई चैट्रिस जो हर स्टीफल था वो तो हमारे जो मुल्क के अगेंस्ट जो वॉर में लड़ा था, तो फिर उसका नाम क्यों पड़ा गया। लेकिन इसके बाद जो चैपल के बाहर काफी लोगों ने कन्वर्सेशन भी की, लेकिन चिप्स को इस बात का बुरा ना लगा। तो उसके बाद जो है मिस्टर चिप्स से एक एक दफा स्कूल के जो फील्ड थे उनमें ट्रेनिंग हो रही थी, बॉयनेट प्रैक्टिस। तो बॉयनेट प्रैक्टिस के बारे में मिस्टर चिप्स के क्या व्यूज थे। अच्छा, ये बॉयनेट प्रैक्टिस के लिए है क्या। ये हम लोगों ने देखा है कि किसी जो जो किसी एयर हम लोग कह सकते हैं किसी रिवॉल्वर रिवॉल्वर के सामने या फिर किसी गन के सामने एक फ्रंट पर एक ब्लेड सा अटैच कर दिया जाता है, जिससे जिससे आमतौर पर अगर लेट्स सपोज के बुलेट खत्म हो गया तो फिर उससे किल किया जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस थी, एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो कि आप लोग कह लें कि तलवार की तरह के ब्लेड से लोगों को किल किया जाता था। तो इसके बारे में मिस्टर चिप्स से राय ली गई कि भाई आपकी क्या राय है बॉयनेट प्रैक्टिस के बारे में। तो मिस्टर चिप्स वॉज एंटी वॉर पर्सन, वो आमतौर पर जंग के अगेंस्ट था। तो इसलिए मिस्टर चिप्स से जब पूछा गया कि उसकी क्या राय है इसके बारे में, तो मिस्टर चिप्स ने यह कहा कि ही इट इज बेसिकली अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल। लोगों को मारने का इंतहाई बेहुदा तरीका है, वो चूंकि पसंद नहीं करता था इस तरीके को। तो इस तरह से मिस्टर चिप्स को इसी बेसिस पर कहा जाता था कि मिस्टर चिप्स एक एंटी वॉर पर्सन है। और इसके अलावा उस दौर के उस वक्त जब ये सवाल किया गया था तो मिस्टर चिप्स को नॉर्मली प्री वॉर भी कहा गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था मिस्टर चिप्स प्री वॉर था या एंटी वॉर था या प्री वॉर क्यों कहा जाता था। सेम क्वेश्चन इज दैट के मिस्टर चिप्स के व्यूज क्या थे बॉयनेट प्रैक्टिस के बारे में। मैंने लिखा किलिंग पीपल विद अ सोर्ड लाइक ब्लेड। इसके अलावा इट वाज मिस्टर चिप्स के व्यूज में वेरी वल्गर वे टू किल पीपल। और ये इसीलिए मिस्टर चिप्स को एंटी वॉर या फिर मिस्टर चिप्स को प्री वॉर कहा जाता था। स्टूडेंट ये थे कॉन्सेप्ट बेसिकली फर्स्ट पार्ट हमारे लेक्चर का। आफ्टर दैट अब हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं इसमें जो पास पेपर के जो सैनोनिम्स थे। सैनोनिम्स जो प्रिपेयर करने के लिए जो पास पेपर्स में आए वो पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्सिंग। टेक्सिंग का मतलब टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, फटीगिंग, थका देने वाला। उसका यर्न, स्टोरी, एनेक्डोट को कहा जाता है, कहानी को। आफ्टर दैट फ्रेंटिक, फ्रेंटिक होता है मैड, पागलपन, फ्रेंजिड। उसके अलावा ब्रोक आउट होता है अपीयर होना, स्टार्ट हो जाना। फ्लूक एक लकीली लक को कह लें आप लोग, एक किस्मती से जिसको कामयाबी मिल जाए उसको फ्लूक कहा जाता है। इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली या ऑटोमेटिकली। आफ्टर दैट डिस्पाइज, हेट को कहते हैं, नफरत को आप लोग कह लें, कंडेम करना, कंडेम। और एमर्ज, पीरियड, किसी चीज का ब्रोक आउट होना शुरू। ग्रेटिफाइड, कंटेंटेड, मशहूर होना। स्लाइमर, हॉटी, ह्यूज, बहुत बड़ी, सुप्रीम। आफ्टर दैट सेंसर्ड, काट छांट करना, किसी चीज को बैन करना, किसी चीज के बारे में काफी ज्यादा जो क्रिटिकली किसी चीज का एनालिसिस करना होता है, सेंसर्ड। आफ्टर दैट कंजीनियल होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। प्लांट्स कंप्लेंट्स को कहा जाता है शिकायत को, एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्सटेंसिवली और लैविशली, एक्सटेंसिवली और लैविशली। इंटोनेशन, टोन, एक्सेंट को कहा जाता है। ब्लाइंड, कर्टन, पर्दे। और अबॉर्ड, हेट, नफरत को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, we discuss the question of the questions which are basically taken from past papers. When did Mr. First question is when did Mr. Chips rejoin Brookfield and what were his feelings? Mr. Chips rejoined Brookfield in 1916, July 1916. और इसकी फीलिंग्स सुब्लाइम थी, हॉटी थी, हैप्पी था, फिट फील कर रहा था। और उसके बाद व्हाट वर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर चिप्स ड्यूटीज एज अ टीचर व्हेन ही रीजॉइंड ब्रूकफील्ड।
मिस्टर चिप ने जब इसकी ड्यूटी वही पुराने लेसन, पुरानी ओल्ड लैटिन और इसकी हिस्ट्री, ग्रीक हिस्ट्री, पुराने मजाक, पुरानी प्रोनाउंसिएशन. Similarly, next question is what was risol? Risol was a kind of meal. Fourth question number four. What was Chip's latest? Chip's latest was Chip's new and fresh joke, which he used to make to his student to make his classes interesting. When did Mr. Chips become acting head of Brookfield second time? Mr. Chips came acting head of Brookfield second time after the death of Chatris in 1917. Question number 6. Why did Mr. Chips not want to become a permanent head? क्योंकि वो खुद को एलिजिबल नहीं समझता था. इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स बेसिकली वो कहता था कि अगर अपनी वो एफिशिएंटली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता तो ये मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा. After that, question number 7. What were Chips' duties? Chips' duties एज अ हेड. हेड के तौर पे क्या ड्यूटीज? शिकायत को सुनना, हेडमास्टर के स्टडी रूम में बैठना और उसके बाद लोगों की मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स को डील करना, सेंस ऑफ प्रपोर्शन को मेंटेन करना. एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What were Mr. Chips' views about the Bonnet practice? Mr. Chips didn't like Barnett practice. Mr. Chips didn't like. Mr. Chips was basically a anti-war or pre-war person. He was called a pre-war person because he was against war. That's why he was called anti-war person. And Mr. Chips considered Barnett practice a very vulgar way of killing people. Student, this is all from my side. If you have any query or question, you can discuss with your learner. Thank you.